Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well at your places. Myself, Vinay Kumar Shah from Shri Jyoti Educational Group, Kota. Today we are discuss about exercise 8.1 based on properties of parallelogram, properties of rhombus, square, rectangle. Now, in exercise 8.1, question number 2. Question number 2 is show that the diagonals of a parallelogram are equal, then it is a rectangle. Question number 2, exercise 8.1. Read again question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So first we have to write given. हमें क्या given है? ABCD is a parallelogram and diagonal AC is equals to diagonal BD. यह आपको क्वेश्चन में गिवन है. प्रूव करना है. टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल. हमें प्रूव करना है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है. क्लियर? ABCD रेक्टेंगल होने का मतलब क्या हो गया? दोनों की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है. पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगी. बट वी हैव टू प्रूव इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. तो फर्स्ट प्रूफ पे आए. नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle ADB, we have to consider these two triangles ABC and ADB. Now in these two triangles what we can say, AB equals to AB is the common side. दोनों ट्राइंगल की ये कॉमन साइड्स हैं. क्लियर? इसके बाद अगर देखें तो AD इक्वल्स टू BC क्वेश्चन में गिवन है. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. क्लियर? And diagonals are equal, then AC is equals to BD. You already given. Clear? Now by the rule of side, 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 what we can say by triple S rule, by triple S rule, triangle ABC is congruent to triangle ADB. और जब ये दोनों triangles congruent है तो बाय CPCT its corresponding parts are equal, then angle ABC is equals to angle DAB. Clear all of you? अब यहां पे अगर हम देखें तो because AD parallel to BC and AB is a transversal, AB transversal है. So what we can say, the sum of angle DAB plus angle ABC equals to 180 degree. Reason is co-interior angle. These are co-interior angles और जब ये co-interior angles हैं तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. और यहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है बाय CPCT एंगल ABC एंगल DAB के इक्वल है. तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. नाउ in equation, this is equation 1 and this is equation number 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 यहाँ से वैल्यू रख दो. एंगल DAB is equals to एंगल ABC plus एंगल ABC equal to 180 and angle ABC plus angle ABC is twice of angle ABC equals to 180 and angle ABC equals to 180 upon 2. Now angle ABC is equals to 90 degree. Clear all of you? और जब each angle 90 degree हो गया तो therefore ABCD is a rectangle. Clear all of you? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल गिवन थे और हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है. यस. क्वेश्चन नंबर 4. रीड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट द डायगोनल्स ऑफ इट्स स्क्वायर. यू टू गिवन स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स its all sides are equal.
and its diagonals are bisect to each other at 90 degree. Clear all of you? तो यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है और हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट भी करते हैं, और जब बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे सबटेंडेड एंगल इज 90 डिग्री. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन इज ABCD is a square. क्लियर? और प्रूव करना आपको शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स इक्वल भी है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? 90 डिग्री. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो टू प्रूव में लिखें. टू प्रूव, फर्स्ट प्रूव करना है डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD एंड सेकेंड OA equals to OC, OB equals to OD and angle AOD equals to angle DOC equals to angle AOB equals to angle BOC equals to 90 degree. क्लियर? अब हम प्रूफ पे आते हैं. नाउ प्रूफ पे आने के लिए टू कंसिडर दिस टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD. Now in these two triangles what we can say, AB equals to AB is the common side. AB equal to AB दोनों triangles की common side है. Clear? Next हमारे पास AD equals to BC because all sides of a square are equal. Clear all of you? और यहाँ पे एंगल DAB, या फिर हम एंगल्स को पहले लिख दें, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री एंड DA इक्वल्स टू BC आपको गिवन है. नाउ द टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन बाय SS rule triangle ABC is congruent to triangle ABD. क्लियर? और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT वी कैन से डायगोनल AC is equals to BD. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब इट्स डिवाइड्स इन इक्वल टू पार्ट्स. क्लियर? तो we have to consider triangle in triangle AOD and triangle BOC. See here. Now in these two triangles, this angle is equals to this angle because square की opposite side parallel होती हैं and it is in the shape of Z. और Z के face पे जो एंगल बनता है these are alternate interior angle. Clear? And this angle is equals to दिस एंगल. क्लियर? दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है. क्लियर? तो बाय टू एंगल एंड इट्स इंक्लूडेड साइड, तो बाय ए से रूल दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स AD इक्वल्स टू या एंगल OAD, this angle is equals to angle OCB. Reason is alternate interior angle. AD equals to BC given है and angle ODA is equals to angle OBC. Reason is these are alternate interior angle. Now angle side. तो by AS rule what we can say, triangle AOD is congruent to triangle BOC. और ये जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देन OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ हम एक पार्ट और प्रूव कर चुके हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अब हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे? एट 90 डिग्री.
90 डिग्री प्रूव करने के लिए टू कंसिडर ट्राइंगल AOD in triangle AOD and triangle DOC. Now in these two triangles AD equals to DC given, OD equals to OD is the common side, OD equals to OD common side है, clear, and OA equals to OC just अभी हमने प्रूव किया है by CPCT, clear. तो what we can say, this is side side side. तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BOC, और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो बाय CPCT वी कैन से एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC, एंड व्हाट वी कैन से द सम ऑफ दिस एंगल, दिस टू एंगल्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो व्हाट वी कैन से, बिकॉज एंगल AOD प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. अब यहां से वैल्यू रख देते हैं हम, एंगल AOD इक्वल प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOD equals to 180, and one of angle AOD and one of angle AOD is twice of angle AOD equals to 180 degree, and angle AOD equals to 180 upon 2, and angle AOD equals to 90 degree. Then prove all the conditions. हम सारी conditions prove कर चुके हैं. Diagonals equal हैं, its diagonals bisect to each other, वो हम already prove कर चुके हैं, और कहाँ पे bisect कर रहे हैं, 90 degree. Clear? Now next question of exercise 8.1, question number 6. Question number 6 of exercise 8.1. Question number 6 is diagonal AC of a parallelogram ABCD. You have to given parallelogram ABCD. Clear? इस पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल गिवन है, AC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एंड डायगोनल AC डिवाइड्स एंगल A. यू टू गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपको गिवन है. आपको प्रूव करना है कि इट्स ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C. आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू एंगल C बाइसेक्ट ऑल्सो, AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, and you have to prove ABCD is a rhombus. ABCD rhombus तब होगा जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, then parallelogram converted into the form of rhombus. So first given, what is given, ABCD is a parallelogram and diagonal AC bisect angle A, बाइसेक्ट एंगल ए. क्लियर? टू प्रूव आपको प्रूव करना है, व्हाट इज, फर्स्ट इज इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, एंड सेकेंड इज ABCD इज अ rhombus. क्लियर? अब यहां पे हम प्रूफ पे आते हैं. We have to consider these two triangles in triangle ABC and triangle ADC. तो इन दोनों triangles में यदि हम देखें तो see here AD is equals to BC because the opposite side of parallelogram are equal. AD equal to BC and angle 1 equals to angle 2. you have to given कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है. क्लियर? एंड AC इक्वल्स टू AC इज द कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड. तो साइड एंगल साइड, तो बाय एसएस रूल व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, therefore it bisect angle C also.
यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है इन इक्वल 2 पार्ट्स। क्लियर। सेकंड पार्ट प्रूव करना है रोम्बस। रोम्बस होने का मतलब अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो फिर एडजेसेंट साइड अपोजिट तो इक्वल है ही सही, एडजेसेंट इक्वल हो जाएगी तो पैरेललोग्राम कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रोम्बस। तो सेकंड पार्ट, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सी हियर, यहां पे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, एंड ऑल्सो यू टू गिवन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ये तो गिवन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वी टू राइट बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन दोनों रिलेशन से अगर हम बात करें तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और जब किसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जब किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है या अपोजिट एंगल्स इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और जब एडजेसेंट साइड इक्वल होगी इट मींस देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, देन ABCD इज अ रोम्बस। जब एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल हो गई है तो वी कैन से ABCD पैरेललोग्राम से किस में कन्वर्ट हो गया, रोम्बस में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 8.1 you to given ABCD is a parallelogram। ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है। रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन इज AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C। क्लियर। यहां पे you to join diagonal BD, और क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे AP and CQ, these are perpendicular from the vertex A and C, and this point is P and this is Q। clear। तो first we have to write given ABCD is a parallelogram and AP perpendicular to BD and CQ also perpendicular to BD। टू प्रूफ पे है, क्या प्रूफ करना है हमें। फर्स्ट इज ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD and second is AP is equals to CQ। ये दो पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। क्लियर। नाउ प्रूफ पे है, यस, we have to consider these two triangles in triangle APB and triangle CQD। clear। now in these two triangles CQD, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें, ध्यान से देखें, this angle and this angle are 90 degree। clear। and this angle, suppose this angle is 1 and this angle is 2, so what we can say, angle 1 is equals to angle 2 by alternate interior angles। clear। and see here this angle 90 डिग्री हो गया आपके पास, ये और ये इक्वल हो गया एंगल, एंड AB इक्वल्स टू DC आर अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो टू एंगल्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। नाउ बाय A's rule of congruency these two triangles are congruent। so in these two triangles what we can say, angle APB is equals to angle CQD is 90 degree, angle 1 is equals to angle 2, reason is alternate interior angle। clear। and in these two triangles AD is equals to in this two triangle AB is equals to DC। clear। this is given।
तो एंगल साइड, नाउ बाय एज रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एज रूल ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय CPCT इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। नाउ इन सेकंड पार्ट, बिकॉज triangle APB is congruent to triangle CQD, now by CPCT what we can say, AP is equals to CQ। now prove the condition। clear all of you? तो हमने दोनों पार्ट्स इसके अंदर प्रूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपको ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD is a trapezium। Read again। In which AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है, and AD is equals to BC। और आपको प्रूव करना है 4 पार्ट्स। एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, triangle ABC is congruent to triangle BAD, and triangle diagonal AC equals to diagonal BD। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। वी हैव टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन which is parallel to AD and extended AB intersect at the point E। Clear? This is our construction part। So first we have to write given ABCD is a trapezium AB is parallel to DC and AD equals to BC। यह आपको गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सेकेंड पार्ट इज एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD। triangle ABC is this and BAD is this। क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें congruent प्रूव करना है, ट्राइंगल BAD, एंड फोर्थ इज diagonal AC is equals to diagonal BD। क्लियर? वी हैव टू प्रूव दिस 4 पार्ट्स। अब हम 1 बाय 1 इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूफ पे आए, सी बिकॉज AB पैरेलल टू B, सॉरी AB पैरेलल टू DC, so we can say A is also parallel to DC and AD पैरेलल टू CE। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए तो वी कैन से देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। हमने प्रूव कर दिया कि ADCE एक पैरेललोग्राम है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? AD is equals to CE and also you have to given AD equals to BC। and now by the help of equation 1 and 2, 1 और 2 की हेल्प से हम लिख सकते हैं BC equals to किसके? CE के। अब हम एंगल्स मार्क कर देते हैं। दिस एंगल इज सपोज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्लियर? अब यहां पे इन ट्राइंगल BCE, इन दिस ट्राइंगल BC बराबर है किसके? CE के। नाउ बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल what we can say, angle 3 is equals to angle 4। this is your third equation। क्लियर? एंगल 3 इक्वल हो गया किसके? एंगल 4 के। क्लियर?
अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन इज दिस आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर? इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे जब AD पैरेलल टू CEA, तो जब दो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल हो गई और इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। रीजन इज को इंटीरियर एंगल। क्लियर? अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं अपन। ये होगी अपना इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज 5। Now by the help of equation 4 and 5, from equation 4 and 5, angle 2 plus angle 4 equals to angle 1 plus angle 4. Angle 4 से angle 4 cancel हो गया. Now this is angle 1 is equals to angle 2 and angle 1 is angle A, angle 2 is angle B. Clear all of you? अब यहां पे अगर हम देखें हमें प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। क्लियर? तो यहां पे अगर C है, इधर हम देखते हैं यहां पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं बिकॉज AB पैरेलल टू DC। जब AB पैरेलल टू DC है तो फिर ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। व्हाट वी कैन से द सम ऑफ 1 प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, दीज आर को इंटीरियर एंगल। और दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल D बराबर एंगल 2 प्लस एंगल C। बिकॉज एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, तो यहाँ पुट कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल C। ये कैंसिल हो गया, देन एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। नाउ सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड। थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट के लिए टू कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल, दिस इज योर थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स AB इक्वल्स टू AB इज द कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन साइड है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास AD एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? बाय CPCT। नेक्स्ट यहां पे AD बराबर है किसके? BC के। गिवन है क्वेश्चन में तो टू साइड एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल। तो बाय एसेस रूल ऑफ कॉन्करेंसी, बाय एसेस रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD। क्लियर? तो थर्ड पार्ट इज प्रूव्ड। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो हम सीधा लिख सकते हैं बाय CPCT। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय CPCT इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन AC is equals to BD। क्लियर all of you? Now your exercise 8.1 is complete. Now let's start the second exercise 8.2 based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. We have discussed about midpoint theorem. Midpoint theorem is the line segment joining the midpoint of two sides of the triangle. ट्राइंगल ABC की दो साइड्स AB और AC के मिड पॉइंट हैं D और E, और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। हमें ये प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। और इसे प्रूव करने के लिए हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, वी टू ड्रॉ अ लाइन CG विच इज पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड D विच इंटरसेक्ट CG एट द पॉइंट F। क्लियर? तो फर्स्ट वे टू राइट गिवन is in triangle ABC, D and E are the midpoints of side AB
एंड ए सी। ये आपको दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी में डी और ई मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी और ए सी के। प्रूव करना है। टू प्रूव, फर्स्ट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड सेकेंड इज डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं वापस। मिड पॉइंट थ्योरम, ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डी बी सी के पैरेलल है एंड हाफ ऑफ बी सी। क्लियर? तो गिवन, व्हाट इज गिवन, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। क्लियर? प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। क्लियर? सम कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं अब हम। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? Construction is draw CG parallel to AB and extended D intersect CG at point F। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने CG एक लाइन ड्रॉ करी है जो AB के पैरेलल है और D को एक्सटेंड किया है जो CG को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, यस, you have to consider these two triangles in triangle ADE and triangle CEF. Now in these two triangles, what we can say, because AD parallel to CG के हैं या AD parallel to CG कहते हैं या AB parallel to CG, both are same. तो AB is parallel to CG, then we can say this angle and this angle are alternate interior angle. See here, this is in the shape of Z. Clear? Suppose this angle is 1 and this is 2. This angle and this angle are vertically opposite angles and E is the midpoint of AC, then A is equals to EC. तो जब दो ट्राइंगल्स की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड नहीं होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, then we can say these two triangles are congruent by AAS rule. So clear? Now in these two triangles, what we can say, angle 1 is equals to angle 2. Reason is these are alternate interior angle. Angle AED is equals to angle CEF. These are vertically opposite angle and AE is equals to EC. You have to give it. So angle side. So by Ayer's rule of congruency, what we can say, triangle ADE is congruent to triangle CEF. Clear all of you? अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT व्हाट वी कैन से, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD बराबर है किसके, CF के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? एंड DE is equals to EF. Clear all of you? Now see here, this is your second equation. आपको क्वेश्चन में गिवन है बिकॉज D is the midpoint of AB. जब D AB का मिड पॉइंट है तो वी कैन से AD is equals to DB. जब AD DB के इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम इक्वेशन 1 और 3 की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड। एंड दिस टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन से, यहां से हम AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज BD इज इक्वल्स टू
CF। क्लियर? BD किसके इक्वल हो गया? CF के। एंड AB इज पैरेलल टू CG, और ऑल्सो वी कैन से जब AB CG के पैरेलल है तो डेफिनेटली BD भी किसके पैरेलल होगा? CF के। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गए, देन व्हाट वी कैन से दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ देयरफॉर BDFC इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? और जब ये पैरेललोग्राम है तो वी कैन से DF इज पैरेलल टू BC। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो DF किसके पैरेलल है? BC के। या वी कैन से DE इज पैरेलल टू BC। नाउ आवर फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। क्लियर? हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, और अब हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की हाफ है। तो सेकंड पार्ट, बिकॉज BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अब जब BDEF एक पैरेललोग्राम है तो वी कैन से DF इज इक्वल्स टू BC। लिख सकते हैं DF किसके इक्वल है? BC के। एंड DF इज द सम ऑफ DE प्लस EF इक्वल टू BC। क्लियर? अब यहां पे EF किसके इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की यदि हम हेल्प लेते हैं तो DEF के इक्वल है, तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो EF इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? DE। नाउ दिस इज DE प्लस DE equals to BC, and DE plus DE is twice of DE equals to BC, and DE is equals to half of BC. Then we have to prove the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Now do revise midpoint theorem and questions of exercise 8.1. Thank you so much.